Hello, my dear friends and little flowers. How are you? Fine? Okay, let us start. In previous lecture, I discussed with you the preparation of sulfuric acid by contact process, and as I told you, I will explain you the purifying unit and manufacturing unit in contact process. Actually, schematic diagram also given in our textbook, but that schematic diagram is quite difficult one, and that is not that much easy to understand. So I have drawn easier schematic diagram that can be understandable for you. So let us start. As I told you, sulfide or sulfur is combust in pyrite burner. See, this is a pyrite burner. First is combust in pyrite burner, and in pyrite burner the produced sulfur dioxide, that sulfur dioxide is introduced to dust chamber. See, the produced sulfur dioxide in first step, pyrite burner means here sulfur or pyrite or burn in presence of oxygen and sulfur dioxide is manufactured. This sulfur dioxide is impure sulfur dioxide, and this impure sulfur dioxide is introduced to this purifying unit. So first one is the dust chamber. What happens here, my friend? In dust chamber, steam is introduced to remove dust particles. In dust chamber, in SO2, any dust particle is there, then it can be removed. Then after dust chamber, the sulfur dioxide is introduced to cooler. What happens in cooler? In cooler, hot gases are cooled to about 373 Kelvin by passing through them the cooling pipes. Actually, these cooling pipes are shown in schematic diagram given in our textbook. Okay, here I have written simply cooler. I repeat again, what is there in coolers? The hot gases are cooled, because in pyrite burner the gas is hot. In dust chamber steam is introduced, so once again it is hot. So in cooling it is cooled, and for cooling we have to pass through them the cooling pipes. Okay, so then after that gas is passed through the scrubber. So important thing, what happens in the scrubber? So here this scrubber is the one type of washing tower, and in scrubber it is packed with a quartz. Okay, and what happens here? The mist and any other soluble impurities are present in sulfur dioxide. Mist and any other impurities present in sulfur dioxide is dissolved here. So mist present and any soluble impurities present, that is removed in a scrubber. Then after scrubber it passed through the dryer. What happens here in the dryer, or it is called drying tower? In drying tower, water vapor, because in a dust chamber it is passed through the steam, so water vapor is present. Then this water vapor is removed here in the drying tower, and the gas becomes completely dry. Then after we have to introduce it in a arsenic purifier. So arsenic purifier, what happens here?
It is a small chamber fitted with cells containing freshly precipitated ferric hydroxide. And in the arsenic tower, arsenic purifier, the impurities of arsenic present in a sulfide or in a sulfur during preparation of sulfur dioxide, any arsenic impurity present, then arsenic impurity is absorbed in arsenic purifier tower. I repeat again, in arsenic purifier tower there is a bed of ferric freshly prepared precipitation of ferric hydroxide. So I repeat again, the sulfur dioxide first pass through the purifying chamber unit, or you can say purifying unit, to purify sulfur dioxide. First passed from dust chamber, then cooler, then scrubber, then dryer, then arsenic purifier, and after passing through the arsenic purifier, it is introduced to testing box. Where introduced? It is introduced to testing box. In testing box, what is there? We have to apply light. If Tyndall effect is observed in testing box, the gas which introduced in testing box, we have to apply the strong beam of light. If some impurities are present, then they will scatter the light and the path becomes visible. The light path becomes visible. It is called Tyndall effect. And so we can judge that this sulfur dioxide is impure. ये सल्फर डाइऑक्साइड प्योर नहीं है, इम्प्योर है। तो फिर से उसको प्यूरिफाइंग टावर में से, प्यूरिफाइंग यूनिट में से पास करना है। तो हम फिर से उसको यहाँ से लेके, मानो कि ये टेस्टिंग बॉक्स में दिखा रहा है कि टेस्ट मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड प्योर नहीं है, तो यहाँ से लेके इसको फिर से हमको ये प्यूरिफाइंग यूनिट में ले जाना है। ये इम्प्योर है तो प्यूरिफाइंग यूनिट में ले जाना है और फिर से प्योर करना है। जब टेस्टिंग बॉक्स में हमें पता चले कि अब हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो प्योर है, तब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ले जाना है। वहाँ उसको एक बार फिर वो गैस को हीट करना है। सल्फर डाइऑक्साइड वंस अगेन इज हीटेड। अब जो मैं आपको यूनिट दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इजी यूनिट है। अब सल्फर डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस टू द कैटालिटिक चैम्बर, रिएक्शन नंबर 2। हियर सल्फर डाइऑक्साइड कैटालिटिक चैम्बर में एंटर होता है। यहाँ से ऑक्सीजन भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड, प्योर सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। आगे चलते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड हम डालेंगे एब्सॉर्प्शन चैम्बर में। एब्सॉर्प्शन चैम्बर में हम ऊपर से कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे करेंगे। इसमें ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये सल्फ्यूरिक एसिड एब्सॉर्ब होगा। ये जो एब्सॉर्ब होगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ओलियम। अब ये जो ओलियम बनता है वही ओलियम हमें डाइल्यूशन चैम्बर में ले जाना है। यहाँ से एक बात याद रखना, हमें उतना ही वाटर स्प्रे करना है, प्योर वाटर, जितना हमें डाइल्यूट ये चाहिए। इंडस्ट्री में जनरली इतना वाटर यहाँ से स्प्रे करते हैं, डाइल्यूट करते हैं इस ओलियम को कि हमें 96 to 98% जो है वो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिले। एक बार फिर हम मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं सीधा सीधा एक एक सेंटेंस में। यहाँ सल्फर बर्न होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ये इम्प्योर होता है। ठीक है, ये इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड जो है डस्ट चैम्बर में डालते हैं। यहाँ डस्ट हम रिमूव करते हैं, बाद में इसको कूलर में डालते हैं, कूलिंग हम करते हैं तो कोई डेंसिटी वाली इम्प्योरिटी जो है वो हो जाती है। स्क्रबर में हम डालते हैं, स्क्रबर में मिस्ट और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव हो जाती है। बाद में उसको हम ड्रायर में डालते हैं। ठीक है, तो ड्रायर में क्या होता है
ड्रायर में हम ये कम्प्लीटली गैस ड्राई हो जाता है। उसके बाद हम आर्सेनिक प्यूरीफायर में डालते हैं। आर्सेनिक प्यूरीफायर में क्या है, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी दूर हो जाती है। बाद में हम उसको टेस्टिंग बॉक्स में हम इसको टेस्ट करते हैं। अगर इम्प्योरिटी हमें मिलती है तो फिर से हम इसको प्यूरीफाइंग यूनिट में ले जाते हैं। अगर हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्योर मिलता है तो हम प्री हीटर में ले जाते हैं। बाद में कैटालिटिक रिएक्शन करते हैं जिसमें हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो मिलता है वो आगे ले जाते हैं हम एब्सॉर्प्शन चैम्बर में। यहाँ पे ये एब्सॉर्प्शन होके हमें ओलियम मिलता है, और ओलियम मिलने के बाद डाइल्यूट करते हैं, और ये डाइल्यूट में हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको समझाया, स्कीमेटिक डायग्राम ऐसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस काम करता है। चलिए हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज़ की तरफ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, कुछ डिस्कशन करेंगे 2-3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और बाकी अगर रहेगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़। तो एक तो ये कलरलेस है, आपने लेबोरेटरी में देखा ही है, ऑयली है, डेंस और लिक्विड है, और बड़ी बात है कि ये किंग ऑफ केमिकल है। आपने ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में स्ट्रक्चर भी देखा है, डाई बेसिक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये डेंसिटी है। डेंसिटी खास आपको याद रखनी है क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वेट से आप इसकी मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि क्वेश्चन में डेंसिटी दे दी जाती है, लेकिन मानो कि कभी ये किंग ऑफ केमिकल है तो कोई अच्छे केमिकल की आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। अगर आप याद नहीं रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात ये ध्यान में रखनी है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट तो लो है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, डेंस लिक्विड है। अब हम लोग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में अपने रैंक पे जो है सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं। उसका मतलब है कि ये वाटर में सोल्यूबल है, ओके। जब इसको हम वाटर में उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है। अगर हम ये सॉल्यूशन बनाने में ध्यान नहीं रखते तो एक्सप्लोजन होके वो हमारी आँख में या स्किन पे ब्लास्ट मतलब कि फ्रोथ हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही केयर लेनी पड़ती है इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए, एक्सोथर्मिक है इसलिए, तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आगे चलें तो ये आपको पता ही है कि ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन नेचर है। डाइबेसिक तो मैंने आगे ही बोल दिया, ठीक है। डाइबेसिक तो रिएक्शन से हम समझाएंगे कि हम H2SO4 को वाटर में डालते हैं तो हमें H3O+ मिलता है, 2 स्टेप में मिलता है। इसका पहला जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही एसिडिक है। अब ये HSO4, अब दूसरे स्टेप में ये जो H3O+, ये पूरा रिएक्शन आप टोटल करके भी लिख सकते हो कि H2SO4, ये HSO4 कैंसल आउट, ठीक है। तो H2SO4 when react with H2O it gives a 2H3O+ and SO4 2-, ठीक है। ये दो रिएक्शन में मुझे जो बताने के मतलब कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मुझे ये दिखानी है कि इसका जो पहला हाइड्रोजन है वो बहुत एसिडिक है, इसका दूसरा हाइड्रोजन है वो इतना एसिडिक नहीं है। यहाँ पे लिखा है, और रिलेशन भी आपको पता है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके। तो ये Ka1, ये है Ka2, तो Ka1 इज ग्रेटर Ka2, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो पहला हाइड्रोजन एज H3O+ आयोनाइज होता है वो बहुत ही एसिडिक है, और ये काफ़ी कम एसिडिक है। दोनों हाइड्रोजन इक्वल एसिडिक नहीं है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। अब आगे चलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कैन फॉर्म 2 सीरीज सोल्ट। कैसे सोल्ट बनाता है? 2 सीरीज सोल्ट। ये देखिए, इसको 2 सीरीज सोल्ट बोलते हैं, Na2SO4। तो मानो कि सोडियम का हम H2SO4 के साथ सोल्ट बनाते तो NaHSO4,
पहले बनता है सोडियम बाइसल्फाइड, हमने पहले भी देखा है सॉल्वे प्रोसेस में, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड देन सोडियम कार्बोनेट। जो 2 सीरीज सोल्ट का मतलब होता है कि जो सोल्ट 2 स्टेप में आयोनाइज होता है, ठीक है, ये बाद में ये हाइड्रोजन निकल के ये Na2SO4 बनता है, ठीक है। तो NaHSO4 Na2SO4 ये 2 सीरीज सोल्ट Na2SO4 NaHSO4। अब हम आगे चलेंगे। तो ये जो H2SO4 वाली ये प्रॉपर्टी है, ये वाली, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप देख लीजिएगा, समझने की ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। मैं यहाँ से अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।